I am explaining now concept of investment fluctuation reserve. Again, see, one example is given here. In the balance sheet, this is asset side and this is liability side. Investment amount is given, means cost amount is given 2 lakhs, and investment fluctuation reserve is given 18,000. Investment fluctuation reserve is a reserve set aside out of profit, means prepared out of profit to meet fall in the market value of investment. We all know that there is always fluctuation in the market value of any investment. This reserve is prepared or kept aside, which is prepared out of profit to meet fall in the market value of investment. इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम होती है तो वो एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रिपेयर किया होता है. ओके, सो इन दिस एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, नाउ सी दिस एग्जांपल, investment at cost is rupees 2 lakhs. This is asset side, this asset is given, and they have investment fluctuation reserve set aside rupees 18,000. There are various kind of cases in this relation. First case is if no information, means प्रॉब्लम में कुछ भी इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के से रिलेटेड, तो दिस इन्वेस्टमेंट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू एसेट साइड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, एंड दिस रिजर्व विच वॉज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स in their profit sharing ratio. Okay, this will be the entry if no information is given in the problem, means no adjustment in the problem. Okay, now second condition is, we will discuss second condition in this related to in this problem. If second condition is the market value of investment is given in the adjustment rupees 2 lakhs, means the cost value and market value is same. If market value is 2 lakhs, this is the second condition. इस कंडीशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस नहीं है एडजस्ट करने के लिए. फ्रॉम दिस रिजर्व कुछ भी फॉल नहीं है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्स्ट कंडीशन की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स. ओके, दिस इज द सेकंड कंडीशन. नाउ थर्ड कंडीशन, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन दिस अमाउंट, मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू अगर 1,90,000 हो गई तो क्या करने का, हियर देर इज़ फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू. ओके, ये वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,90,000 हुई है, ऐसे एडजस्टमेंट में बताया है. सो फ्लक्चुएशन दैट इज़ फॉल इज ऑफ रुपीज़ 10,000. इन दिस केस, टू एडजस्ट दिस fall of 10,000, to adjust this fall, they have prepared investment fluctuation reserve. So we will adjust rupees 10,000 from 18,000. So there will be remaining amount 8,000 in the investment fluctuation reserve. They will distribute the remaining amount between the partners. So in this case the entry will be investment fluctuation reserve account debit होगा 18,000 रुपीज़ के लिए, बिकॉज वी हैव टू कैंसल दैट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन एडजस्ट करने के लिए हमने इस अमाउंट का 10,000 रुपीज़ यूज़ किया है
इसलिए इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपीज़ एडजस्ट किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जाएगा वो, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो एज कैपिटल अकाउंट से एज्यूम किया है कि ए और बी पुराने पार्टनर्स है, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 8,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर. Okay, total amount 8,000 will be distributed between the old partners in their old ratio. समझ में आया? Okay, this will be the third condition. नॉर्मली प्रॉब्लम में ये कंडीशन ज़्यादा आती है क्योंकि ये तुम्हें करने के लिए पूछा होता है. प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त हमें क्या करना है, देखो. हियर इन ओल्ड बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 2 lakhs. We will write in the reconstituted balance sheet amount of investment rupees 1,90,000. So 10,000 adjusted, and we will transfer remaining investment fluctuation reserve में की remaining amount 8,000 to partners capital account in their profit sharing ratio. Okay, so in entry will be capital account के credit side में हम लिखेंगे by investment fluctuation reserve account, and we will distribute the remaining 8,000 rupees between the old partners in their old ratio. This is the third condition. Then the fourth condition. In fourth condition, if market value is increasing, if market value is more than cost value, ओके, मीन्स कॉस्ट 2 लाख है, मार्केट वैल्यू सी वी कैन अज्यूम 2,18,000 होती है, 2,20,000 होती है, कुछ भी होता है, ऐसे होता है. तो क्या करें? तो इन दिस केस नाउ हियर वी विल अज्यूम मार्केट वैल्यू इज 2,18,000. ओके, सो अभी यहाँ क्या होगा, ध्यान दो. कॉस्ट वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 2,18,000 हुई है. हियर देर इज फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, बट दिस रिजर्व इज मेंटेन्ड टू एडजस्ट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो we will not adjust this difference 18,000 with the help of investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve will be fully distributed between the partners in their old profit sharing ratio. Okay, understood? In case of admission, old partners, and in case of change of profit sharing ratio, all the partners will transfer investment fluctuation reserve fully to partners capital account. Then हमारी पुरानी वैल्यू 2 लाख है, नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,18,000 होगी, तो देर इज़ प्रॉफिट ऑफ 18,000. वी विल ट्रांसफर दैट प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स वाइल टैलिंग द प्रॉब्लम वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स. दिस विल बी द फोर्थ कंडीशन. एंड नाउ द लास्ट कंडीशन. इफ market value is rupees say 1,75,000, it means fluctuation, that is fall, is more than रिजर्व. यहाँ देखिए, रिजर्व 18,000 है और फॉल 25,000 का हुआ है. सो इन दिस केस फर्स्ट वी विल यूज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉर एडजस्टिंग फॉल. सो द एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000. Then we want some more amount, that is 7,000. समझ में आया 7,000 कैसे आया? 1,75,000 मार्केट वैल्यू हुई है ऐसा बोला है,
2 लाख है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कॉस्ट डिफरेंस इज 25,000, मीन्स फॉल इज ऑफ ₹25,000, उसमें 18,000 गया तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 7,000. दिस 7,000 अमाउंट विल बी एडजस्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट will also be debited for ₹7,000. This is loss of the firm and both amount will be transferred to investment account. This will be the entry. We have to pass investment reserves entry, then other entry if there is any. Okay. In this case इन्वेस्टमेंट की वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में 1,75,000 हो जाएगी. रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस दिखेगा 7,000 रुपीज़ ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैंसिल हो जाएगा, उसका पोस्टिंग कहीं भी नहीं होगा बिकॉज इट इज़ गेटिंग कैंसल्ड. ओके, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स वेरियस कंडीशन. ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एक एडजस्टमेंट हमेशा चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रॉब्लम में भी आ सकती है, एडमिशन में भी आ सकती है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई रिटायरमेंट वगैरह उसमें भी आ सकती है. दैट्स ऑल.